Medicos, ready to strengthen your Medicore. Hi, I'm Vedanshi, a second prof MBBS student. And if you're constantly worried about the fact कि यार ये कैसे होगा, ये तो मुश्किल लग रहा है, don't worry. Grab a coffee, grab a pen and your notebooks and we'll simplify this together. So, without further ado, let's start with our topic for today, that is Introduction to Anatomy. Okay, so first of all, why is Introduction to Anatomy important? Introduction to Anatomy इसलिए important है because throughout your MBBS life and even after you become a doctor, there are certain terminologies in this जो कि आगे तक यूज़ होंगी. And secondly, first year में हो कोई भी वाइवा होगा तो एंटीरियर पोस्टीरियर सुपीरियर इन्फीरियर ये कुछ ऐसी टर्म्स हैं जो यू शुड नो कि कहाँ पे क्या टर्म यूज़ करनी है. सो दैट इज़ माई इंट्रोडक्शन टू एनाटमी. इसमें आज हम बेसिकली 3 टॉपिक्स कवर करेंगे. फर्स्ट इज़ द पोजिशंस, सेकेंड टॉपिक हमारा होगा बेसिक टर्मिनोलॉजीज एंड थर्ड टॉपिक हमारा होगा प्लेन्स एंड सेक्शंस. एक एक करके कवर करेंगे एंड आई विल ट्राई माई बेस्ट टू एक्सप्लेन देम टू यू. सबसे पहले इफ़ यू टॉक अबाउट पोजिशंस में हमें मेनली 4 पोजिशंस पता होनी चाहिए. फर्स्ट इज़ द एनाटमिकल पोजिशन, second is the supine position, third is the prone position and fourth is the lithotomy position. अगर मैं anatomical position की बात करूँ, anatomical position में the person should be facing you, hands should be by the side, the palms of the person should be facing you with the feet put together. अगर मैं इस पिक्चर में zoom in करूँ तो इसमें we can see that the person is facing towards us. The hands are by the sides of the body. The palms are facing towards us and the feet are put together. This is what we call the anatomical position. Right? Then the next position is the supine position. Supine position is nothing. जैसे हम लोग बेड पे सीधा लेटते हैं, that is basically what the supine position is. Supine position में the person is lying down on the back with hands by the side. The palms are facing upwards and the feet are put together. Anatomical position जैसा same है, the only difference being the person is lying on the back and the palms are facing upwards. इस picture में as you can see. Then the next position is the prone position. Prone position में the person is lying down on his/her face, chest and the abdomen. जैसे supination में the person was lying down on the back, right? प्रोन पोजिशन में ऑपोजिट है, वो अपने फेस चेस्ट एंड एब्डोमेन के उस पर लेटा हुआ है. देन द लास्ट पोजिशन इज द लिथोटमी पोजिशन. लिथोटमी पोजिशन इज अ पोजिशन जो कि यूजुअली डिलीवरी के ड्यूरिंग यूज होती है, इन विच द पर्सन इज लाइंग डाउन ऑन द बैक विद द लेग्स रेज्ड एंड द फीट्स आर सपोर्टेड इन स्ट्रैप्स. इसमें वी कैन सी द पर्सन इज लाइंग डाउन ऑन द बैक, द लेग्स आर रेज्ड and the feet are supported in the straps. Okay, so these were our positions: anatomical position, supine position, prone position and lithotomy position. Then the next thing that we'll talk about are basic terminologies. Basic terminologies are very important, especially if you are a first year student and अभी तक अगर वाइवास वगैरह नहीं हुए हैं. वाइवास में एग्जामिनर यूजुअली इन्हीं चीज़ों में फंसाता है. तो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट दैट यू अंडरस्टैंड द मीनिंग ऑफ ईच एंड एवरी वन ऑफ देम. ओके, सो द फर्स्ट इज एंटीरियर और द वेंट्रल. एंटीरियर और वेंट्रल मैंने कैसे याद किया था? ए फॉर एंटीरियर, ए फॉर आगे. एंटीरियर मीन्स कि कोई आगे है चीज़. अनदर थिंग टू रिमेंबर हेयर इज़ ये जितनी भी हमारी टर्मिनोलॉजीज़ हैं, दीज टर्मिनोलॉजीज़ आर ऑलवेज यूज्ड in comparison or with respect to something. I simply cannot say that the sternum is anterior. It is anterior, but with respect to what? I have to say that the sternum is anterior to the vertebral column. That would be a complete and correct statement. You cannot simply say that the sternum is anterior. हमेशा दो चीज़ों के बीच में comparison रहेगा, दो चीज़ों के respect में चीज़ें चलेंगी. Right, so anterior means आगे. I gave you an example that the sternum is anterior to the vertebral column. Just opposite to anterior is the posterior.
Posterior or dorsal, we can say. Posterior means पीछे. I can say through an example that the vertebral column is posterior to the sternum, right? Then the next two terms are superior and inferior. Superior, नाम से पता चल रहा है, superior means something that is ऊपर and inferior means something that is नीचे. If I give you an example, I can say that the nose is superior to the lips, or I can say that the lips are inferior to the nose. Then the next two terms are cranial and caudal. Cranial word जहाँ पे भी use होगा, cranial as a word means head and caudal as a word means tail. अब cranial and caudal are the same as superior and inferior. But अगर ये लोग सेम है तो फिर हमने दो एक्स्ट्रा टर्म्स दी ही क्यों? हम सिंपली सुपीरियर और इन्फीरियर भी तो यूज़ कर सकते हैं. This is because whenever we are talking about either the skull, the brain, the spinal cord or the vertebral column, we have to use the terms cranial and caudal instead of superior and inferior. If I give you an example, I can say that the skull is superior, I have to say that the skull is cranial to the vertebral column. I cannot say that the skull is superior to the vertebral column. If I give you an example of caudal, I can say that the vertebral column is caudal to the skull. Superior, inferior, उन चार चीज़ों में हम लोग नहीं यूज़ कर सकते. क्या चार चीज़ें? ब्रेन, स्कल, वर्टेब्रल कॉलम एंड हमारी स्पाइनल कॉर्ड. ये चार चीज़ों की जब भी आपस में कंपैरिजन की बात होगी, वी हैव टू यूज़ द टर्म क्रेनियल एंड कॉडल, राइट. देन द नेक्स्ट टू टर्म्स आर मीडियल एंड लेटरल. Medial basically means something that is close to the midline and lateral means something that is by the sides or away from the midline. अगर मैं example दूँ, example में I can say that the nose is medial to the eyes, right? Lateral का अगर मैं example दूँ, I can say that my ears are lateral to my eyes. You cannot just say that my ears are lateral. They are lateral, but with respect to what? They are lateral with respect to your eyes. Please say the complete sentence. Then the next two terms are superficial and deep. Superficial and deep terms usually तब यूज़ होती है जब in a given structure there are different layers present. अगर मैं example की बात करूँ, example में if I give you the example of my forearm, मेरे forearm में सबसे ऊपर मेरी skin है, then I have the subcutaneous tissue and the subcutaneous fat, then उसके बाद I have my muscles and then I have my bones. तो अगर मुझे उसमें सुपरफिशियल एंड डीप टर्म का यूज़ करना है, हाउ कैन आई से? आई कैन से दैट माई स्किन इज़ सुपरफिशियल टू माई मसल्स. सुपरफिशियल बेसिकली मीन्स समथिंग दैट इज़ टूवर्ड्स द एक्सटर्नल साइड, टूवर्ड्स बाहर की तरफ, राइट. डीप इज समथिंग जो है अंदर की तरफ. डीप का अगर मैं एग्जाम्पल दूँ, आई कैन से दैट माई बोन्स आर डीप टू माई मसल्स. उसके बाद द नेक्स्ट टू टर्म्स आर प्रॉक्सिमल एंड डिस्टल. ये कैसे याद रखना है? प्रॉक्सिमल मीन्स पास, डिस्टल मीन्स दूर. पास दूर है, बट किस चीज़ के पास दूर है? इसमें द टर्म दैट यू हैव टू रिमेंबर इज़ ऑरिजिन. ऑरिजिन ऑफ अ गिवन स्ट्रक्चर. जैसे कि इफ़ आई टॉक अबाउट माई अपर लिम, मेरा अपर लिम शोल्डर जॉइंट से ओरिजिनेट हो रहा है, राइट. प्रॉक्सिमल वर्ड अगर मुझे यूज़ करना हो, आई कैन से that my elbow joint is proximal to my shoulder joint, right. अगर distal word का use करना है, I can say that my wrist joint is distal to my shoulder joint. बट इसमें दो चीज़ों के बीच में comparison रहेगा. अगर मैं elbow joint और wrist joint की बात कर रही हूँ, अगर इन दोनों के बीच में मैं कंपैरिजन कर रही हूँ, एल्बो जॉइंट इज़ ऑब्वियसली प्रॉक्सिमल एंड रिस्ट जॉइंट इज़ ऑब्वियसली डिस्टल. बट अगर मैं अपने रिस्ट जॉइंट और अगर मैं अपने इंटरफैलेंजियल जॉइंट्स की बात करूँ, तो देन माई रिस्ट जॉइंट बिकम्स प्रॉक्सिमल एज इट इज़ क्लोजर टू द ओरिजिन. बट मेरा फिर इंटरफैलेंजियल जॉइंट डिस्टेंट बन जाएगा, डिस्टल बन जाएगा, राइट. तो इसमें दो चीज़ों के बीच कंपैरिजन चलेगा. द नेक्स्ट टू टर्म्स आर इप्सिलेटरल एंड कॉन्ट्रालेटरल. हो सकता है अभी स्टार्ट ऑफ द सेशन है तो ये टर्म्स अभी ना आई हो या फिर ना पढ़ी हो आपने. ये टर्म्स यूजुअली हमारे न्यूरो एनाटमी में यूज़ होती हैं. इप्सिलेटरल मीन्स ऑन द सेम साइड ऑफ अनदर स्ट्रक्चर.
If I have to give you an example, I can say that my left ear is ipsilateral to my left eye. Contralateral means on the opposite side of a given structure. For example, my left ear is contralateral to my right eye, right? तो कॉन्ट्रालेटरल कैसे याद रख सकते हो? हम ऑफन किसी की बात को कॉन्ट्राडिक्ट कर देते हैं. कॉन्ट्राडिक्ट करना मीन्स किसी बात का उसने कुछ बात कही एंड आपने उसकी ऑपोजिट बात कह दी. दैट इज़ व्हाट कॉन्ट्राडिक्शन इज. तो वहाँ से कॉन्ट्रालेटरल आप याद रख सकते हो. कॉन्ट्रालेटरल मीन्स ऑपोजिट साइड ऑफ अ गिवन स्ट्रक्चर. देन the next terms are flexion and extension. These terms are very important. Examiner कई बार कह भी देता है कि flexion करके बताओ, extension करके बताओ. So it is very important that you understand the meaning of these terms. Flexion की अगर मैं बात करूँ, flexion means when two body surfaces are being brought close to each other with decrease in joint angle. बहुत बड़ी सी डेफिनेशन है, बहुत कॉम्प्लेक्स सी है, बट आई एक्सप्लेन इट टू यू विद एन एग्जाम्पल. अगर मैं अपने अपर लिम्ब की बात करूँ, राइट, एक ये वाली सरफेस है, एक ये वाली सरफेस है, ये दो सरफेसेस है, राइट. अगर मैं इन दोनों को पास लेके आऊँ तो टू सरफेसेस आर बीइंग ब्रॉट क्लोज टू ईच अदर एंड इनके बीच में जो जॉइंट एंगल है, जो हमारा एल्बो जॉइंट का एंगल बन रहा है इनके बीच, वो डिक्रीज हो रहा है. अगर मेरा हाथ यहाँ पे स्ट्रेट है, मैं पास लेकर आई तो इनके बीच का एंगल डिक्रीज हो गया, राइट. और ये जो दो सर्फेसेस थी, ये दो सर्फेसेस एक दूसरे के पास आ गई. दैट इज व्हाट फ्लेक्शन इज. अब अगर मैं एक्सटेंशन की बात करूँ, एक्सटेंशन इज जस्ट द ऑपोजिट ऑफ फ्लेक्शन. दो सर्फेसेस एक दूसरे के दूर जाएंगी और उनके बीच का जो जॉइंट एंगल होगा वो इंक्रीज हो जाएगा. दैट इज व्हाट एक्सटेंशन इज. फ्लेक्शन हो गई, एक्सटेंशन हो गया. देन द नेक्स्ट टर्म इज एबडक्शन एंड एडक्शन. एबडक्शन एंड एडक्शन अगेन एक दूसरे के ऑपोजिट टर्म्स हैं. अगर मैं पहले एडक्शन की बात करूं, मैंने कैसे याद किया था, मुझे इन दो टर्म्स में बहुत कन्फ्यूजन रहती थी बिकॉज एक तो बी और डी एक जैसे लगते हैं. एग्जाम में जो पूछा हो वो प्लीज़ ध्यान से पढ़ना क्वेश्चन पेपर में क्या लिखा है. अगर मैं एडक्शन की बात करूं, एडक्शन में एड वर्ड आ रहा है. एड मीन्स यू आर एडिंग समथिंग टू योर बॉडी, ठीक है. अगर मेरे हाथ ये दोनों ऐसे एक्सटेंडेड हैं, अगर मैं हाथ ये मेरे दोनों ऐसे एक्सटेंडेड है और अगर मैं इनको अपने मिड लाइन के पास लेके आ रही हूँ, जो मेरी ट्रंक की मिड लाइन है, अगर मैं उसको पास लेके आ रही हूँ, दैट इज़ व्हाट एडक्शन इज. ब्रिंगिंग समथिंग क्लोज टू द मिड लाइन, दैट इज़ व्हाट एडक्शन इज. एबडक्शन इज कि मैं मिड लाइन से कोई चीज़ दूर लेके जा रही हूँ. ओके, गॉट इट. Then the next term is opposition of the thumb. Opposition of the thumb कुछ खास नहीं है. It is a special property of your thumb, जिसमें कि जैसे हम ऐसे काउंटिंग करते हैं, राइट, 1 2 3 4. इसमें आपका जो थंब है, आपके थंब की जो टिप है, दैट इज़ एबल टू टच द टिप्स ऑफ ऑल योर अदर फिंगर्स. दिस इज़ व्हाट ऑपोजिशन इज. कि आपका थंब इज़ एबल टू टच द टिप्स ऑफ ऑल योर अदर फिंगर्स. दिस इज़ नोन एज ऑपोजिशन ऑफ द थंब. उसके बाद पामर एंड डॉर्सल एस्पेक्ट ऑफ द हैंड को अगर मैं बताऊँ, पामर एस्पेक्ट नाम से समझ आ रहा है, पाम वाली सरफेस के लिए यूज़ कर रहे हैं. दिस इज़ द पामर सरफेस ऑफ योर हैंड. पामर अगर ये हो गई तो डॉर्सल सरफेस ये हो गई, राइट. पामर एंड डॉर्सल एस्पेक्ट ऑफ द हैंड ये हो गया. अब थिंग्स कन्फ्यूजिंग कहाँ होती है? फुट के एस्पेक्ट में. फुट में वी हैव द प्लांटर एंड द डॉर्सल एस्पेक्ट. प्लांटर एस्पेक्ट क्या होता है? हम जब चलते हैं, व्हेन वी आर वॉकिंग, वी प्लांट आवर फुट, ठीक है. अगर मैं इसको अपना फुट मानूँ तो ये हमारी प्लांटर सरफेस हो गई. ऐसे रखते हो ना आप, अपनी सोल रखते हो ना पहले ग्राउंड पे, सो आपकी सोल को ही वो लोग प्लांटर एस्पेक्ट बोल रहे हैं. प्लांटर के ऑपोजिट यानी कि जो ऊपर वाला सरफेस है, दैट इज़ योर डॉर्सल एस्पेक्ट ऑफ द फुट. अगर मैं इस डायग्राम के थ्रू थोड़ा एक्सप्लेन करने की कोशिश करूँ तो जो ये नीचे वाले एरो से मैंने मार्क किया हुआ है, ये बेसिकली मैंने सोल को दिखाने की ट्राई की है, सोल को दिखाने की कोशिश करी है. दैट इज़ योर प्लांटर एस्पेक्ट. और अगर मैं ये ऊपर वाला एरो बताऊँ, ऊपर वाला एरो मैंने डॉर्सल एस्पेक्ट के लिए शो किया है. ओके, तो ये हो गया हमारा प्लांटर एंड डॉर्सल एस्पेक्ट ऑफ द फुट. उसके बाद देयर आर टू टर्म्स, प्लांटर फ्लेक्शन एंड डॉर्सी फ्लेक्शन. प्लांटर फ्लेक्शन एंड डॉर्सी फ्लेक्शन. फुट में हम लोग एक्सटेंशन वर्ड यूज़ नहीं करते.
इट इज़ आइदर प्लांटर फ्लेक्शन और इट इज़ डॉर्सीफ्लेक्शन। कैसे एक्सप्लेन करूँ? अब मान लो कि ये मेरा फुट है, मैं इसको यहाँ से दिखा रही हूँ, इसका डॉर्सल एस्पेक्ट है, ये इसका प्लांटर एस्पेक्ट है। प्लांटर फ्लेक्शन में जो हमारी प्लांटर सरफेस है ना, अगर मैं उसको ऐसे नीचे करके देखूँ, आप अपने फुट के साथ ट्राई करके देखो, आप अपनी सोल वाली साइड को ऐसे नीचे कर रहे हो, दैट इज़ वॉट योर प्लांटर फ्लेक्शन विल बी। पूरा नहीं होगा, आई एम नॉट सेइंग कि आपका फुट पूरा हाफ में हो जाएगा, बट हाँ जितना भी हो रहा है दैट इज़ व्हाट द प्लांटर फ्लेक्शन इज़। डॉर्सीफ्लेक्शन में जो ऊपर डॉर्सम है आपके फुट का, आप उसको ऐसे ऊपर की तरफ कर रहे हो, दैट इज़ व्हाट डॉर्सीफ्लेक्शन इज़। प्लीज़ रिमेंबर, फुट में एक्सटेंशन नहीं होता, देयर इज़ आइदर प्लांटर फ्लेक्शन और देयर इज़ डॉर्सीफ्लेक्शन। उसके बाद इफ़ आई टॉक अबाउट द इन्वर्जन एंड ईवर्जन ऑफ फुट, अगेन हैंड के थ्रू एक्सप्लेन करूँगी। इन्वर्जन में मान लो कि ये आपका मीडियल बॉर्डर है फुट का और ये लेटरल बॉर्डर है फुट का। अगर मैं आपके फुट को ऐसे मीडियल बॉर्डर से रेस कर रही हूँ, ये आपका राइट फुट है, अगर मैं इसको मीडियल बॉर्डर से उठा रही हूँ, मीडियल बॉर्डर इसकी ऊपर उठ रही है और आपकी सोल जो है वो इनवर्ड की तरफ फेस कर रही है, दैट इज़ व्हाट इज़ नोन एज इन्वर्जन ऑफ द फुट। इनवर्ड इन्वर्जन, इससे याद रखना है, इन्वर्जन मीन्स इनवर्ड की तरफ हो जाएगी आपकी सोल। दूसरा है इवर्जन ऑफ द फुट। इवर्जन इज जस्ट दी ऑपोजिट। इवर्जन में अगर ये आपकी लेटरल बॉर्डर है, मैं लेटरल बॉर्डर रेस कर दूँ तो आपकी सोल बाहर की तरफ हो गई, दैट इज़ व्हाट इज़ द इवर्जन ऑफ द फुट। ये हो गई हमारी सारी टर्म्स, 25 टर्म्स है, हर एक टर्म बहुत इंपॉर्टेंट है, कहीं ना कहीं यूज़ पक्का होगी, तो प्लीज़ अच्छे से इनको याद कर लेना एंड प्लीज़ ट्राई कि अपने डे टू डे लाइफ में ये टर्म्स आप यूज़ कर पाओ। उसके बाद द लास्ट टॉपिक फॉर टुडे इज़ प्लेन्स एंड सेक्शंस। प्लेन्स एंड सेक्शंस में मेनली 3 प्लेन्स हमें डिस्कस करने हैं, द सजाइटल प्लेन, द कोरोनल प्लेन एंड द ट्रांसवर्स प्लेन। सबसे पहले प्लेन्स और सेक्शंस इंपॉर्टेंट ही क्यों है, पढ़ने क्यों है? बिकॉज जब भी आप अपना कोई सीटी स्कैन कराने जाते हो, कोई MRI स्कैन कराने जाते हो या फिर कोई रेडियो का स्कैन होता है, उसमें आपकी बॉडी जो है वो डिफरेंट सेक्शंस में कट होती है, नॉट एग्जैक्टली कट बट डिफरेंट सेक्शंस प्रोड्यूस होते हैं आपकी बॉडी में उन इमेजेस के, एंड देन उन इमेजेस के थ्रू ही आपके डायग्नोसिस बनता है, ठीक है। तो सबसे पहले इफ वी टॉक अबाउट द सजाइटल सेक्शन, आई विल एक्सप्लेन इट टू यू थ्रू अ डायग्राम, इट वुड बी ईजियर फॉर यू टू अंडरस्टैंड। सजाइटल प्लेन जो होता है, इट डिवाइड्स द बॉडी इनटू राइट एंड लेफ्ट हाफ्स। इसमें मैंने ये जो पिंक से मार्क किया हुआ है, द मीडियन प्लेन और द सजाइटल प्लेन एक ही बात होती है। मीडियल प्लेन में इफ़ यू सी, ये जो पिंक वाला है, इसने आपकी बॉडी को राइट और लेफ्ट हाफ में डिवाइड कर दिया, राइट। अगर मैं कोई ऐसे लाइन अपने यहाँ से पास कराऊँ तो मेरी बॉडी राइट एंड लेफ्ट में डिवाइड हो जाएगी, ठीक है। दैट इज़ व्हाट द सजाइटल प्लेन इज़। अब इट इज़ नॉट ऑलवेज नेसेसरी कि अगर हम सेक्शन या प्लेन कट कर रहे हैं तो हमेशा बीच में से करें, ये नेसेसरी नहीं है। अगर मैं बिल्कुल एग्जैक्टली बीच में से कट कर रही हूँ, दैट इज़ नोन एज द मिड सजाइटल सेक्शन, मिड सजाइटल प्लेन या फिर सेक्शन। बट अगर मैं बीच में से कट ना करके उसके पैरेलली कोई लाइन पास कर रही हूँ, मान लो मैंने यहाँ से कोई लाइन पास कर दी, मिड तो नहीं है, मिड से तो नहीं हो रहा, इट विल बी नोन एज द पैरासजाइटल प्लेन। पैरा स्टैंड्स फॉर पैरेलल, ठीक है। ये हो गया हमारा सजाइटल प्लेन। नेक्स्ट अगर हम लोग बात करें, नेक्स्ट इज द कोरोनल प्लेन। कोरोनल प्लेन जो है, इट डिवाइड्स द बॉडी इनटू एंटीरियर एंड पोस्टीरियर पार्ट्स, आगे पीछे में डिवाइड कर देगा। कैसे? अगर मैं कोई लाइन अपने यहाँ से पास करूँ, यहाँ से वो मुझे कट कर रही है, तो एक आगे वाला पार्ट हो जाएगा, एक पीछे वाला पार्ट हो जाएगा, दैट इज़ व्हाट द कोरोनल प्लेन इज़। अगर मैं डायग्राम में शो करूँ, ये जो ब्लू से मार्क किया हुआ है, दैट इज़ द कोरोनल प्लेन। ये यहाँ से कट किया है इसने, तो एक आगे वाले में डिवाइड हो गया, एक इसका जो पीछे पार्ट है एक उसमें डिवाइड हो गया, दैट इज़ द कोरोनल प्लेन। उसके बाद द थर्ड एंड द लास्ट थिंग फॉर टुडे इज़ द ट्रांसवर्स प्लेन। ट्रांसवर्स प्लेन बेसिकली हमारी बॉडी को अपर एंड लोअर पार्ट्स में डिवाइड कर देगा। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं कोई लाइन यहाँ से पास करूँ, यहाँ से वो पीछे कट कर रही है, तो एक ये ऊपर हेड वाला पार्ट हो गया और एक नीचे पूरी वाली बॉडी हो गई। ट्रांसवर्स प्लेन ये होता है,
डायग्राम में शो करूँ, ये जो ग्रीन से मार्क किया हुआ है दैट इज़ द ट्रांसवर्स प्लेन, अपर एंड लोअर हाफ्स में डिवाइड कर देगा। वन मोर थिंग टू रिमेंबर हेयर इज़ दैट ये तीनों प्लेन्स जो होते हैं, दीज प्लेन्स आर म्यूचुअली परपेंडिकुलर टू ईच अदर। तीनों एक दूसरे से 90 डिग्रीज के एंगल पे होते हैं। ओके, सो आज हमने बेसिकली 3 चीज़ें पढ़ी। पोजीशंस, 4 पोजीशंस होती है, एनाटॉमिकल पोजीशन, सुपाइन पोजीशन, प्रोन पोजीशन एंड द लिथोटमी पोजीशन। सबसे इंपॉर्टेंट पोजीशन जो याद रखनी है दैट इज़ द एनाटॉमिकल पोजीशन। एनाटॉमिकल पोजीशन में एक्सटर्नल कई बार बोल देता है, अगर बच्चे को कुछ भी नहीं आता तो इसलिए एक एनाटॉमिकल पोजीशन में खड़े होकर दिखा दो, एंड बिलीव मी कुछ बच्चे वो भी गलत कर देते हैं, ठीक है। देन बेसिक टर्मिनोलॉजीज हमने पढ़ी, इसको तो प्लीज़ नॉर्मल अपने फ्रेंड से भी बातें कर रहे हो ना तो एंटीरियर पोस्टीरियर करके ही बातें करो कि तू मेरे एंटीरियर क्यों खड़ा है, तू मेरे पोस्टीरियर क्यों खड़ी है, ऐसे करके बातें करो, तभी ये डे टू डे लाइफ में आप यूज़ कर पाओगे। एंड नेक्स्ट हमने प्लेन्स एंड सेक्शंस पढ़े। प्लेन्स एंड सेक्शंस एज सच कोई पूछता नहीं है, बट आगे जाके धीरे धीरे जैसे न्यूरो एनाटॉमी में व्हेन यू सी स्पेसिमेंस, सजाइटल स्पेसिमेंस दिखेंगे आपको, वो टीचर पूछ सकता है कि ये कौन से प्लेन में काट रखा है आपने, तो वहाँ पे इनका यूज़ होगा। ओके, सो दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। आई होप you enjoyed it. If you did, please make sure to like, share and subscribe, and I'll see you all in the next video. Thanks for watching.